and my colleagues and fellows and those who are appearing in the postgraduate examinations. Now this tutorial is also for the third year, fourth year and final year students also. There is nothing just like levels are concerned. Level means that you are a very undergraduate person and you are in third year, I am in final year and I am doing the house job. I am better than you and I am doing the MCPS examination better than you, or FCPS examination or other examinations, MRCP or the steps or residencies. It depends actually upon the experience. The theoretical background is the same. लेवल कुछ नहीं होता, इसमें ये होता है कि you have to learn it. The question is why we are discussing these things. This is my open question. This is a subject which I call as infection and disease and infectiology. And it is very, very important because of the microbials. Agents are mostly involved in the pathogenesis of the disease, most of the disease of the world. At one time, the acid peptic disease considered to be the hyperacidity and erosions of the mucosa, gastric mucosa. Now it is related with Helicobacter pylori infection. So it is now microbiological, basically it is microbiological indulgence in the disease process. So most of the diseases in the world, research is going on. Even atherosclerosis seems to be the initiating agent probably is some of the microbiological agent. We don't know the exact nature of that agent, but it is. They are working on it. I am Professor Ali Haider, and I am a global visiting professor of medicine online without any fame or without any economics. This is my slogan which I always say. The introduction is the name of the PROTEUS, VULGARIS and the Pseudomonas and basiform bacteria, fusiform bacterium, etc. And these are the organisms which are actually opportunistic organisms. They are a part of what we call as the coliform bacteria, and in coliform bacteria, and one of the genus is a very big, and that is called Enterobacteriaceae. So it is one part of it. So it is the normal place of location. Basically, is a part of a coliform bacteria. So they are commensals in these areas, in small intestine, in the large intestine. So it is if there is higher multiplication of these bacteria, they can cause problems in the intestine. Otherwise, it will not cause diarrhea or other diseases of the abdomen is concerned. But it is also found in the soils and the water, etc. That is, remember, it is opportunistic organism. So it is depending upon the immunocompetency of the patient. If the immunocompetent patient, the infection is usually not very, very common. It is not uncommon, but it is not very, very common. But in cases of the immunosuppressed states, the infection is common one. So you remember that these are the opportunistic organisms. The third point in mind is that because it is producing the nitrogen, it is a nitrite producing organism, and that is why it is included in the urinary tract infection. Try to understand this, although it is a boring type of a subject, very dry, but you have to be careful because the question can be asked at any level जिसे आप कहते हैं, whether third year है, final year है और post graduate examinations हैं, कहीं पे भी कोई सवाल कर सकता है.
I am now addressing the FCPS Part 2 candidates. There was a candidate, I usually now recalling him, that he was the examiners. There is a case of a paroxysmal unknown origin, and he said that urinary tract infection is possibility in this patient, which is missed. So then the discussion is open now for the other examiner, parallel examiner, and he asked the questions, which are the commonest or commoner or common microorganisms which can cause the urinary tract infection. Number one question was this. Number two, why the women are more affected urinary tract infection? They have got more chances of it. Thirdly, if the resistance is concerned, why it is called the most difficult management purpose? Because of the resistance which usually occurs in the treatment of the urinary tract infection. These are very, very important points which I have just told you now. So the candidate was questioned about these, and he answered it 2 or 3 questions, but he was unable to answer other questions which were asked by him. Remember, the examiners who are doing the long case, one is sitting and one is observing in the long case. So one who is sitting, because he was the second examiner, he has to ask the all theoretical aspect of the long case. So he was actually reading on the Google search engine about this the organisms causing the urinary tract infection, and one is the PROTEUS. So he can ask any question about the PROTEUS, and the species is PROTEUS vulgaris, which we are discussing now. So introduction is that is a rod shape. Of course, it is gram-negative organism. It is nitrate reducing agent, indole positive, and catalase positive, hydrogen sulfide producing. Now these are the properties that can be differentiated with the other organisms. So it is a gram-negative bacterium. I said that inhabitates the intestinal tract of the humans and the animals. It can be found in the other places as soil and the water and the fecal matter. It is grouped with the Marginalinaceae and is an opportunistic pathogen of the humans. So it is the main classification, that is the scientific classification is Marginalinaceae. Do not remember it, try to remember it, but it is a part of, definitely, of our knowledge. One can remember it, it's fine, otherwise forget it. It is known to cause the wound infection, and other species of genera, Proteus, Malabaris, and others, are known to cause the urinary tract infections. Now, Proteus vulgaris was one of the 3 species which Hauser isolated from the putrefied meat and identified in 1805 when microscope was invented. Then he was able to separate 3 species. One of the 3 species is Proteus and Pseudomonas, and the third one, you know that about it, and that is the Chilmaria. Over the past 2 decades, the genus Proteus, and in particular Proteus vulgaris, has undergone a number of the major taxonomic revisions. In 1982, the Proteus vulgaris was separated into 3 biogroups on the basis of the indole production type of the reaction. The biogroups, one was indole negative and represented a new species, which is invented, which was identified as Proteus penneri, Proteus penneri, whilst biogroups 2 and 3 remain together as Proteus vulgaris 1 and Proteus vulgaris 2, and this is the Proteus penneri. So the person was infected, then it is difficult to manage, because it is got a very higher problem is that this type of organism which you are dealing with, it is an opportunist organism. If it is present in the blood, for example, blood culture positive, then it means that you can say this is the inflammatory pathway is going
to the multiple organ dysfunction syndrome and the hemophagocytic type of syndrome, that means the last days of his or her life. Now this is the scientific classification, although you cannot remember it. The domain is bacteria, the phylum is the pseudonomata monodata, and the class is the gamma proteobacteria, and the order is the Enterobacteriaceae. Now, Enterobacteriaceae are one of the coliform bacteria. Family is the Enterobacteriaceae, and genus is PROTEUS, and species is VULGARIS, Mirabilis, other names as well. Now, isolation in culture. According to the lab fermentation test, the PROTEUS vulgaris ferments glucose and amyclin, but does not ferment mannitol or lactose, which other bacteria do. So PROTEUS vulgaris also tests positive for the methyl red mixed acid fermentation test, and is also an extremely motile organism. That's why the ascending infection of the urinary tract is possible in these cases. So it can ascend through the urethra, and then in the bladder, then into the ureter, then in the pelvis of the kidney, and then in the renal parenchyma, and it can cause what is called acute pyelonephritis. So it is mainly ascending type of the organism because of the mortality of the organism. In the reference book of in the microbiology, there is what is called analytic profile index, and they use this type of terminology, the clinical microbiologist, using the 9-digit code 047 or 602457. Actually, this is the code which you use for this organism. The optimal growing condition of this organism is a facultative anaerobic environment with an average temperature of about 40 degrees centigrade. This is the temperature which needs the facultative anaerobic position in an environment, but it needs less oxygen. That is facultative. The oxygen which is available is sufficient. The Becton and the Dickinson DBL anterior tube system, it is a very important Becton mechanism or Becton mechanism because it is a high-speed culture mechanism, and identification of the members of the other Enterobacteriaceae inoculated with the PROTEUS vulgaris may yield the following test. Now, positive for the glucose fermentation with gas production, it is a gas-producing organism. Negative for the lysine and ornithine. Positive for the hydrogen sulfide production and indole production, but is negative for the lactose, arabinose, and albendazole, sorbitol, and delcitol. Positive for the phenylalanine test and what is Hamsov urea test, because ammonia is releasing from it. And PROTEUS vulgaris can test positive or negative for citrate. All combined for the biocode ID of 314607 according to the microbiological coding system. Their system, they launched it to separate the species. The PROTEUS vulgaris with asymptomatic results with the use in the interpretation guide, computer coding, and identification system. Now, PROTEUS vulgaris can also test urease with negative in solid media, and such as the anterior tube, but will be urease positive in the liquid media. CCIS code will still identify it with a negative urease test. When inoculated in a gelatin stab test, PROTEUS vulgaris is capable of hydrolysis of the gelatin. Remember that this PROTEUS vulgaris is concerning. We are actually we are discussing the PROTEUS vulgaris. So when there is a urinary infection, there are two types of the urine tract infections classified according to the urine RE, nitrite producing and non-nitrite producing. If it is nitrites or negative, it means the chances in the culture for the PROTEUS vulgaris is very, very small. This is one of the important points which is there.
because they are asking it in the examination at any time. The nitrite producing organisms causing UTI or non-nitrite producing organisms causing the nitrite. This is very important. That is why I am saying that one should understand how to interpret the urine RE examination, DR. You are doing it as a what is it, routine-based examination in hospitals, but nobody is bothered about the specific gravity, what is the pH, etc., etc. Because it is fermented, lactose is produced and lactose will be converted into lactic acid. For example, it means that the urine become more and more acidic in nature. That is why it is important. Because the thing is that we are doing what is called a bird's eye view interpretation of the urine RE or the stool DR or etc. etc. That is why the people who are appearing in the examination. इस पर एक वाक़या मुझे याद आ गया है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। और वो ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन है इनमें UAE में एग्ज़ामिनेशंस हैं और सऊदी अरब में एग्ज़ामिनेशन है, ये कहलाते हैं लाइसेंस एग्ज़ामिनेशन कहलाते हैं। जो लाइसेंस एग्ज़ामिनेशन फेलो देता है तो उसको फिर MD करार दे देते हैं अगर पास हो जाता है तो MD इंटरनल मेडिसिन है, MD रेडियोलॉजी वगैरह वगैरह, वो उसको ऑनर ही मिल जाता है। इतना मुश्किल एग्ज़ामिनेशन है, इसका मतलब ये मुश्किल एग्ज़ामिनेशन है ना, तो हर आदमी इसको पास कर लेता। उसमें जो है ना इन्होंने जो ठेका दिया हुआ है ना मैंने किसी को बनाने के लिए, उस वक्त जिस वक्त मैं वहाँ मौजूद था तो मलेशिया को दिया गया था। वहाँ पे जो है ये हायर यानी लोग सारे जमा थे, बिकॉज हायर पेड पेमेंट हो रहा था उनको, उनका सिस्टम ऑफ जो हेल्थ सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जो है जो लोग जो हैं जो जिसको क्यू बैंक्स जिसे कहते हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जब एग्ज़ाम हुआ था सऊदी अरब में तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन प्रोड्यूस किए थे जो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए। उन्होंने इस तरह के सवाल किए थे कि प्रोट्यूस वल्गारिस जो है वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है या इस मैनोटॉल को फर्मेंट करता है या ये कि ये जो है ना फ्रुक्टोज को करता है या सुक्रोज को करता है, इस तरह के कुछ था लिखा हुआ ना। उसको अब आप जो है ना उसको जो है ना वो करना था, पिक करना था इसमें से कौन सी जो है ना मोस्ट लाइकली करेक्ट ऑप्शन है ABCDE। तो लोगों ने जो पढ़ रहे जो एग्जामिनेशन दे रहे थे वो उनमें पाकिस्तान के लोग थे और वो लोग आए थे जो MRCP किया हुआ था जिन्होंने, तो उनको भी ये कहा गया कि ये आप लाइसेंस एग्जामिनेशन पास करें, जो रूल है वहाँ का। FCPS है या जो भी करके आया, मास्टर्स किया हुआ है उसने, MD किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है। तो उन्होंने जो है ना जब एग्जामिनेशन में दे रहे थे तो इजिप्शियन थे उनमें और बाहर से लोग आए हुए थे दूसरे, और इंडियंस बहुत ज़्यादा थे और पाकिस्तान के लोग थे। तो हम तकरीबन जो थे वो 35-40 आदमी होंगे। तो ये जो है मैंने देखा उनमें से 10-15 मिनट के बाद जो है कि वो अरब्स थे और जैसे मिस्र से लोग आए थे, उन्होंने जो है ना वो अरबी में कुछ कहा और वो जो पेपर जो उसने दिया था यानी जो शीट दी थी, आंसर शीट दी थी और साथ में क्वेश्चन शीट दी थी, वो मेरे सामने उन्होंने उसे फाड़ के रेजा करके डेस्क पे फेंक दिया। वो बहुत सख्त नाराज़ हुआ वो जो इन्विजिलेटर था। तो उसने कहा कि ये क्यों किया, उसने कहा कि रबिश मतलब they don't want to pass us, that's all. Their aim is not to pass this examination. They are asking the rubbish questions. हम मुझ जैसा बंदा था जो बैठा हुआ था वो ये सोच रहा था यार मैं तो हूँ इतना एक्सपीरियंस रख के इम्तहान दे रहा हूँ तो मुझे 100% अचीवमेंट करना चाहिए। सारे क्वेश्चन जो हैं 75 थे, फिर 75 थे, तो दोनों को जो है 3 घंटे में करना था। तो मैंने जो है ना बहुत दिम लगाया, बहुत दिमाग मारा, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता कि किस मीडियम में जो है ना ये इन्फेक्शन ज़्यादा सूट करता है और उसको किस तरीके से इसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। उससे मैंने इस आंसर को निकाला कि यार ये प्रोडक्शन जो है ये जो है ना वो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता, अगरचे एसिडिक मीडियम में ग्रो करता है, ये ठीक की बात है,
लेकिन ये जो है लैक्टोज को नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ये जो बात बिल्कुल तय थी। मगर ये जो है पॉजिटिव था ग्लूकोज के लिए, गैस प्रोडक्शन उसी से होती है। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी इसके साथ कि लैक्टोज को, और इसके साथ ही लैक्टोज आ जाता है रेवेनोज से, ये जो लिखा हुआ है उन्होंने सारा। तो 5 ऑप्शन में से जो था एक जो था वो करेक्ट था। तो लैक्टोज वाला जो था वो इसमें फर्मेंट नहीं करता। ये जो है मुझे याद आया, लैक्टोज नहीं करता, लेकिन ये दूसरी जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, ये इसमें नहीं दी हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो वो जो है ना, वो उन्होंने बहुत सारे लिखे हुए थे केमिकल रिएक्शंस। इतना याद था, ये याद नहीं था ये रेडोनटॉल और ये सारी चीज़ें। इतना दिया मालूम था कि लैक्टोज फर्मेंट नहीं करता। तो इससे जो आंसर था वो निकाल लिया हमने, और वो सही हो गया। तो इससे बाद में हमें नहीं पता कि वो सही हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो यही यकीनन सही हो गया होगा। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, इन्हें ये एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होते हैं इसलिए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं होता। वो बनाते ही वो लोग हैं मलेशियंस, उनके पास है इख्तियार। वो भी भेजते हैं 5 दिन पहले एग्जामिनेशन से, सील्ड लिफाफा होता है वो, और उसको फिर वो यहाँ पे उनको पैसे दिए जाते हैं, बहुत बड़ी यानी अच्छी तादाद में दिए जाते हैं। तो इसलिए वो वहाँ का किसी किस्म का वो लगता ही नहीं है ना कि अरेबिक्स हैं या नॉन अरेबिक्स हैं या क्या है। वो नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। अगर आपने अचीव गोल कर लिया, 70% से ज़्यादा मार्क्स ले लिए, तो आप पास हो जाएंगे और आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा। और लाइसेंस के चक्कर में जो है ना लोग ज़ाहिर है ये इम्तहान देते हैं, एक दफ़ा देते हैं, फिर दूसरी दफ़ा देते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो बुक्स शाये हो जाती हैं वहाँ पे, और उसमें जो है ना वो सारे सवाल जो पहले आए हुए होते हैं वो तकरीबन समझ लें 400-500 के करीब MCQs होते हैं उसमें। वो उसी को रट्टा मार रहे होते हैं बैठ के, इसी में से आएगा, यकीनन आता होगा, लेकिन कितना परसेंट आता होगा? 30%, 40%। उसके बाद जो है आपकी नॉलेज जो है ना अगर इससे कमज़ोर है तो आप 70% तो अचीव नहीं कर सकते। बाद में ऐसा भी हुआ है कि वो सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन आ गए हैं और वो लोग पास भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद मसला खड़ा ये हो जाता है जब आप इससे आगे जाते हैं प्रैक्टिकल साइड पे, और फिर आपके साथ जो है ना लोग पैरेलल काम कर रहे होते हैं, तो वो यही देख रहे होते हैं कि बंदा जो है इसको कितना आता है। तो वो हमसे पूछता था इंडियंस, हालांकि वो भी जो थे वो बहुत क्वालिफाइड लोग थे। इंडिया का आपको पता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है उनकी, उनकी मेडिकल जो भी प्रोफेशंस हैं जहाँ से वो लेते हैं डिग्रीज वगैरह, उनकी बहुत ज़्यादा मतलब ये मानी जाती हैं। वो मुझसे ये पूछा करता था कि ये आप किस तरह बता देते हैं, ना तो आप टेस्ट कराते हैं कोई, बहुत कम कराते हैं, इसमें हमारा नुकसान है हॉस्पिटल का। आप एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, आदमी ठीक हो जाता है, फिर वो आपके पीछे पड़ जाता है कि इस मरीज़ को भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। तो मैंने कहा देखिए बात यह है कि इस चीज़ को हासिल करने के लिए ना आपको जो है ना अपने आप को ख्वार करना पड़ेगा। और जितनी ख्वारी हम करते हैं कराची में किसी भी डिग्री लेने के लिए इस टाइप की, तो उसमें हमें बार बार नाकामयाब होना पड़ता है, और फिर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से जो है ना इंटरनल मेडिसिन में आप पास होते हैं। आसान काम नहीं होता है इसको करना। तो इसलिए जो है ना कहीं से भी कोई पुट कर देता है क्वेश्चन अचानक, तो आप इसलिए बिल्कुल तौर पर आपका बैकग्राउंड नॉलेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए ये मैं बताने में मजबूर हूँ, वरना मैं ये चीज़ें क्यों बताऊँगा, ये प्रोटीज को क्या बताने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये जो ना आप सुन लें, चाहे अमल करें चाहे ना करें, बमा लेना ललबरा। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? Now this is several virulence factors that explain their uropathogenic potential, many of which have been investigated in a murine model of UTI, more than 9. They have pili or femori for adherence to the uroepithelium. ये मोटाइल है तो इसमें पालाय और फेमराए हैं जिससे ये स्टिक हो जाता है, फिर ये क्या करता है, सेंड करता है। Additionally, they elaborate the cytotoxic hemolysis that lie the red cells and release iron, a bacterial growth factor. ये इन्होंने ना एक्सट्रीम आप देख रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहा बंदा, तो वो बोला ये इतना पेनिट्रेटिव ऑर्गेनिज्म है ये। अब अल्लाह ताला बचाए उन लोगों को जिनको प्रोटीज होता है, और अगर खुदा खास्ता ये ब्लड में शामिल हो जाए, जैसे कि इसने लाइस किया है बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन जो होता है वो स्नेक बाइट में भी, स्नेक जो वेनम है उसमें भी होता है, पेनिट्रेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर ये नहीं किया गया मैनेज, ये चला गया ब्लड के अंदर, यानी प्रोटियस का बैक्टीरिया या सेप्टिसिमिया बड़ा ख़तरनाक है,
और उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे पहले बता दिया गया था। नॉन लैक्टोज फर्मेंट है, ये भी बता दिया गया था। लीडिंग टू, इसकी वजह से क्या होता है कि, और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड स्टोन्स। अच्छा, दी स्टोन्स, स्टेरॉइड जो स्टोन है, इसका कोई ताल्लुक जो है ना कैल्शियम से नहीं है, फॉस्फेट से नहीं है, सल्फेट से नहीं है, प्रोटीन से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं है। ये सिर्फ इन्फेक्शन अगर होता है, अगर इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि स्टेरॉइड स्टोन के साथ जो एसोसिएटेड यूरिनरी इन्फेक्शन है वो कौन सा है, तो ABCDE वही। तो इसमें जो सही जवाब है वो है प्रोटियस वल्गैरिस, बिकॉज वो यूरेट प्रोड्यूस करता है, एक नंबर बात। तो यूरेट जो है ना, जो भी है वो ज़ाहिर है वो टूट जाता है, यूरिक एसिड में यूरिक क्रिस्टल्स आते हैं, फिर वो क्या कहते हैं अडहेयर करता है, बिकॉज ऑफ जो ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, आयरन रिलीज करता है, ये करता है, सारी चीज़ वो क्या कहते हैं अडहेयर हो जाती हैं। अडहेयर होने के बाद वो स्टेरॉइड स्टोन बना देती हैं। तो स्टेरॉइड स्टोन किसी में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोटियस वल्गैरिस मौजूद था या है, तो आपको पहले उसको मारना होगा, फिर आपको इसको जो है ना डिस्ट्रक्शन देना होगा बाय जो आप करते हैं, जिससे आप लेज़र बीम से इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो अलग बात है। और याद रखिएगा, स्टोन पासर्स आर ऑलवेज स्टोन पासर्स, ये एक जुमला है इंटरनेशनल, याद रखिएगा। जैसे आगे बचाने के लिए आपको इस पेशेंट को, जाहिर बात है कि आपको हमेशा याद रखना है कि किसी तरह से इन्फेक्शन ना हो पाए। यूरिनरी इन्फेक्शन अगर रिपीटेड होगा तो ये स्टोन की फॉर्मेशन फिर होगी, दोबारा होगी, दोबारा होगी, दोबारा होगी, और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा और पायोनेफ्रोसिस हो जाएगा, और इस तरह से पोस्ट रीनल जो है वो फेलियर हो जाएगा, रीनल फेलियर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी है, ये दूसरे इसके जो ऑर्गेनिज्म है, ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल बेस्ड, यानी आपके 72 आवर्स के बाद अगर फीवर हुआ किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद, तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन आएगा। और ये खासतौर पर इम्यूनो सप्रेस्ड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कोई आदमी स्टेरॉइड ऑलरेडी ले रहा था, डायबिटिक था, इम्यूनो सप्रेस्ड था, उनका अंदर ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन है। प्रोटेस मैराबेलस, ये दूसरा इसका स्पीशीज कॉजेज 9% ऑफ द, इसे 9% करता है तो मैराबेलस जो है। और ज़्यादातर जो दूसरी ऑर्गेनिज्म में 75% से ज़्यादा प्रोटियस वल्गैरिस है। वल्गैरिस का मतलब ये होता है वल्गर। तो सर्वेलेंस स्टडी कंडक्टेड बिटवीन 2000 to 2005 के दरमियान की गई है कि विमेन इन 70% आर एट हाई रिस्क, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज ऑफ द वजाना है, वजाना के अंदर भी एक कंजल होता है, म्यूकोजा के साथ अटैच होता है, बार बार रीइन्फेक्ट करता है बिकॉज ऑफ यूरेथ्रा विच इज़ वेरी नियर टू इट। तो प्रोटियस वल्गैरिस एंड प्रोटियस, दूसरा जो एक उन्होंने प्रोटियस की और सभी स्पीशी है राय आर easily isolated from the individuals in the long-term care facilities and hospitals and from the patients with underlying diseases और compromised immune systems। इसको आप आसानी के साथ आइसोलेट कर सकते हैं। पेशेंट विद recurrent infections, those with the structural abnormalities of the urinary tract, those who had urethral instrumentation बार बार किया गया है, यूरेथ्रोग्राफी करने के लिए, स्टेथोस्कोपी करने के लिए, या कैथेटर लगाया है बार बार, and those whose infections were acquired in the hospital have an increased frequency of infection caused by the proteus and other organisms। जो अदर ऑर्गेनिज्म इसके दुमछल्ले हैं, क्लिप्सिला निमोनी है, एंटीरोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, एंटेरोकोकाई है और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे बता दिए उन्होंने आप। यही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आइसोलेट करना पड़ता है और फिर इसकी सेंसिटिविटी चेक करनी पड़ती है। प्रोटियस वल्गैरिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या चीज़ होती है, प्लाज्मिड जो होता है उसी तरह से है। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, चलो आप ये बताएं। इंटरफेरॉन जो होते हैं वो याद रखिए, वो जो खुद वायरस है वो खुद जो है ना वो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है अदर वायरसेस, अदर जो उसकी फैमिलीज हैं दूसरे वायरसेस उनके खिलाफ, उसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। वो अल्फ़ा भी हो सकता है, वो बीटा भी हो सकता है, वो गामा भी हो सकता है। तो जो ड्राइव करते हैं आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंटरफेरॉन्स को, वो वायरस से निकालते हैं,
और फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर बेस यानी सिंथेटिकली वो प्रोड्यूस करते हैं उसको। तो एक्चुअली जो थिंग है इंटरफेरॉन्स जो है वो उनका वेपन है वायरस का। ये याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में। बात कहीं पर भी कोई बात हो जाए इंटरफेरॉन क्या चीज़ है तो आपको मालूम होना चाहिए, प्लाज्मिड के बारे में मालूम होना चाहिए। प्लाज्मिड जो है ड्राइव होता है किसी भी बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए जहाँ पर जेनेटिक प्रोसेस होता है उससे एक पार्ट होता है जो डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद वो आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी, और वो जो होता है वो फिर जो है एक डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाना शुरू करता है, हेमोलाइसिन और फलां और फलां और फलां बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और वो जो होता है वो फिर उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि वो एक्सक्रीट कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। आप एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, वो जो होता है वो उसको तोड़ देता है उठा के। तो इसलिए जो है ना ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं जब डेवलप हो जाएं, ये और में होता है, सूडोमोनास में भी होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी होता है। तो प्लाज्मिड्स हैव वेरी ड्रग रेजिस्टेंट मार्कर्स होते हैं, उसके अलग अलग मार्कर्स हैं, कुछ के खिलाफ नहीं कर सकता, जैसे फॉस्फोमाइसिन है वो अच्छी ड्रग है उसके खिलाफ नहीं बनाता, लेकिन ये जो है ना जो कॉमन ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे फ्लोरोकार्बोनस अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी तो ये प्लाज्मिड्स प्रोड्यूस कर देगा, उसके लिए फिर वो तोड़ देगा और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देगा। इसका इम्पोर्टेंट बात ये है। तो प्लाज्मिड्स को भी अगर याद रख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन्फेक्शन विद द प्रोटीज स्पीशीज आर इन द मेन नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी नहीं है। However, the UTI involving destroyed stones, ये बहुत अहम चीज़ थी जो मैंने पहले भी बताया था। अगर ये स्ट्रोवाइड स्टोन्स हैं इसमें तो कोई स्टोन पास आ रहा है आप उसको एनालाइज कर लीजिए, तोड़ लें, तोड़ के केमिकल एनालिसिस कर लें, पता चल जाएगा कि कितना इसके अंदर क्या चीज़ है मौजूद। इसमें कोई कैल्शियम नहीं मिलेगा, फॉस्फेट नहीं मिलेगा, सल्फेट नहीं मिलेगा, अमोनिएटेड कंपाउंड्स मिलेंगे आपको या यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। और फोकस जो बीच में आ रहा होगा वो जिसके ऊपर ये बन रहे हैं वो जो है वो प्रोटेस होगा। अगर हम उसको कल्चर करने की कोशिश करें स्टोन को तो मालूम चलेगा कि वो प्रोटेस है। ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत। हम में से कितने 100 आदमी हैं, कितनों को ये बात पता है? सवाल ये पता होता है। बाय प्रोड्यूसिंग यूरियस द प्रोटेस स्पीशीज कैन हाइड्रोलाइज यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर रेज द यूरिनरी पीएच। ये पीएच को जब ये मल्टीप्लाई होकर टूटता है, जब ये एसिडिक मीडिया जो है ना होता है यूरिन का, तो उसको ये थोड़ा बढ़ा देता है। तो अल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन प्रोमोट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ द मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट सॉल्ट्स। इसके साथ जो छल्ला है वो मैग्नीशियम और है अमोनियम फॉस्फेट सॉल्ट्स जो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं वो ऊपर चिपक जाते हैं और स्ट्रोवाइड स्टोन्स बना देते हैं। और इसके जो नाइडस जो है वो तो इन्फेक्शन है, उसके चारों तरफ जो है ना ये मैंने जो बताया आपको बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं इसके ऊपर, और उससे जो है वो यूरिक एसिड डेरिवेटिव्स है, अमोनिएटेड कंपाउंड्स हैं, मैग्नीशियम अमोनियम सॉल्ट हैं, ये सारे के सारे चारों तरफ लगे हुए हैं। तो इसलिए ये जो स्टोन्स होते हैं इसके जो होते हैं तो छोटे हैं लेकिन बहुत तकलीफदेह होते हैं ये, बिकॉज इनकी जो हैं वो स्पाइक्स होते हैं इनमें और वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट को, प्रोमोटिंग इन्फेक्शन। ख़ास तौर पे जो है ना ऊपर अगर आप जाएँ किडनी के ऊपर असेंडिंग इन्फेक्शन में, जो ऊपर आपने पढ़ा होगा कि कैलिसिस होते हैं, कैलिकल सिस्टम जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक करते हैं तो इन्फेक्शन तो एक पाइलोनेफ्राइटिस करेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ से आप ट्रीट भी कर देंगे, लेकिन स्टोन्स अगर पड़े हुए हैं तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। दोनों कंडीशन जो हैं वो पोस्ट रीनल फेलियर को कर देंगी। स्पेसिफिकली स्पेशल इसके इन्फेक्शन जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन में होते हैं वो मैंने एक इट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, इट कैन कॉज निमोनिया, इट कैन कॉज द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, very dangerous one is the frontal sinus for example। एंड दूसरा जो इन्फेक्शन है इसके साथ इसके अलावा जो कि ब्लड बॉर्न अगर हो गया है तो वो आपको मारेगा एंडोकार्डाइटिस। इसका एंडोकार्डाइटिस जो होता है वो मेराबेलिस ज़्यादा नहीं होता, जबकि वल्गैरिस के साथ भी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ये हो गया
तो ख़ास तौर पे प्रोस्थेटिक वेल्व्स के ऊपर ये जो होता है ये एंडोकार्डिटिस होता है। प्रोस्थेटिक वेल्व एंडोकार्डिटिस जो आपने पढ़ा था या पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर ये इन्फेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटियस का। अगर वो पहले से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को था, अब उसको जो है ना वो क्या हुआ कि प्रोस्थेटिक वेल्व लगाए हुए हैं आपने पहले मौजूद थे, तो उसकी वजह से एंडोकार्डिटिस हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना फिर थेरेपेटिक ऑप्शन आपके पास जो है वो एप्रोप्रिएट बीटा लैक्टम पूरी यानी बहुत बड़ी वाइड वो है क्लासिफिकेशन जो आपको पता है। यानी इसके अंदर पेंसिलिन्स हैं, इसके अंदर कैफलोस्पिरिन्स हैं और इसके अंदर मोनोबैक्टम्स हैं, इसमें कार्बापेनम्स हैं। लेकिन उसके साथ आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ देना होगा, ग्राम नेगेटिव भी अप्रोच होनी चाहिए। दोनों को मिला के फिर जो आप देते हैं एंडोकार्डिटिस को रिलीव करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे उसको बचाने के लिए पेशेंट को अगर प्रोस्थेटिक वेल्व एंडोकार्डिटिस होगा तो ट्रीटमेंट इसका आप एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो प्रोस्थेटिक वेल्व रिप्लेस होगा दूसरे प्रोस्थेटिक वेल्व से, क्योंकि अब इसके अंदर नाइडिस हमेशा के लिए रह जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि सर्जिकल इंटरवेंशन की इंडिकेशन एंडोकार्डिटिस में प्रोस्थेटिक वेल्व एंडोकार्डिटिस है। स्पेसिफिकली अगर आप करें तो प्रोटियस है, सुडोमोनास है, ये वो इन्फेक्शन है जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट्स के हैं। ट्रीटमेंट इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्सर जो है ये सेंसिटिविटी तो होती है, लेकिन बार बार देने से डिस्ट्रॉय करेगा फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उम्मन पाकिस्तान में हम जब देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो ये इफेक्टिव होती है, लेकिन जो कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको, इसकी डोज नहीं पता उनको। याद रखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन शुड बी गिवन 750 मिलीग्राम BD for 3 days and then 500 मिलीग्राम BD for 7 days। तो 10 डेज की थेरेपी देंगे आप। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, फीवर डाउन हो जाता है उसका, तो इसका मतलब है कि ये सेंसिटिव है। अगर कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट तो आपने पहले ही भेज दिया था, फिर वो ये बता देगा कि भाई सेफ्ट्राजिडीम जो कि 3rd जनरेशन है, कैफलोस्पिरिन, नेटलमाइसिन जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, सर्बेक्टेम मोनोबैक्टेम है ये, और सिवापिराजोन जो ये 4th जनरेशन है कैफलोस्पिरिन, मेरोपिनम जो है, कार्बापेनम है जो बहुत कॉस्टली मेडिसिन है, और पेप्रासिन भी उसी की कंपाउंड है टेजोबैक्टम के साथ। मोनोबैक्टम को मिला दिया इन्होंने कार्बापेनम से, तो पेप्रासिन के साथ टेजोबैक्टम ऐड करें आप, कि अवेलेबल है, बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। तो इसको भी जो इस्तेमाल करते हैं बचाने के लिए, मरीज़ को ज़ाहिर को बचाना तो है, वरना वो मारा जाएगा। वरना आप जो है ना एम्पेसिलिन को सल्बैक्टम के साथ अगर आप दें, जो कि ज़ाहिर मोनोबैक्टम है, उसके साथ दे दें तो भी ये इफेक्टिव है ड्रग। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ICU में आपको क्या करना चाहिए, आपको देना चाहिए ये 3rd जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स प्लस जो है ना आपको एक इसमें आपको ऐड करना चाहिए कोई भी जो है वो बीटा लैक्टम्स को, और 3rd जो है आपको डालना चाहिए इसमें वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स डालना चाहिए। ये ट्रिपल रेजिम अगर देते हैं बचाने के लिए ICU में, दैट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज इट। ये आखिरी हद है आपके पास, उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ना आज के जो है लिंथोलेट पर काम कर रहे हैं और दूसरी ड्रग्स पर भी काम कर रहे हैं, और टेजोबैक्टम के साथ दूसरी ड्रग्स और भी हैं जिनके टिक्लोग्लाइसिन वगैरह, ये सारी जो न्यू मेडिसिन हैं जो अभी से वर्क हो रहा है। लेकिन मैनेज हो जाता है, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि भाई मैनेज करना है तो 10 दिन तक करना है, 2-3 दिन का नागा करा के, यानी उसके हनीमून पीरियड दें, ड्रग बंद कर दें और फिर दोबारा रिपीट करें यूरिन को, अनलेस के जब तक कि ये मौजूद है, जब तक वो आदमी ख़तरे में है। प्लीज़ डू इट लाइक दिस। तो ये एक डिस्कशन था जो मैंने किया आपके साथ। आई होप दैट ऑल्दो इट इज़ अ ड्राई डिस्कशन बट वन शुड नो अबाउट इट। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।